Assalamu alaikum. Sound, IGCSE and O level. Sound. Sound is a form of energy. The energy is passed from one point to another. A wave, like wave, is passed. Sound is an example of longitudinal wave. Keep in mind, the sound wave is longitudinal. Okay, ji. How sound is produced? Sound is produced by a vibrating object. You see here a tuning fork. When tuning fork is strike with the rubber pad, then it vibrate like this. When it vibrate, it produce sound. It's throw in the surrounding medium, make the shape rarefaction, compression, rarefaction. The shape of medium particle when sound wave passes through it. It's basically about air particularly. C and R are the compression and rarefaction. Now we see what is compression. Compression is a region where pressure is slightly greater than the surrounding. Number one, you can say medium particle close together, medium particles close than normal, high temperature region, high temperature region is at compression. And in rarefaction, it will be different. What's rarefaction? The region where the pressure is slightly less than the surrounding and particles far apart, particles far apart. And you know when gas expand, temperature decrease, low temperature region. It's about the rarefaction. Okay, ji. And compression, higher temperature. The vibrating diaphragm of the speaker produce sound as shown below. You see here. Another case, speaker produce sound. It's compression, rarefaction, rarefaction. Here, how can you define wavelength? Distance between two consecutive compression. It's compression. Center of them, it's wavelength. Center of rarefaction. This center is again called wavelength. Okay. One complete compression, one complete rarefaction, also called a wavelength. Okay, ji? Here. Next, ji, problems. You describe how a sound wave can produce by vibrating object. By vibrating object, you strike a spoon with a rubber, it vibrate and produce sound. Describe how air molecule vibrate. Air molecule vibrate parallel to the direction of wave. Here, keep in mind if, for example, it is the speaker here. Suppose it is speaker. These are the suppose air particles. When diaphragm speaker vibrate like this, the medium particle also vibrate parallel to it. It is the longitudinal wave. Which wave? Longitudinal wave. So medium particle vibrate parallel to direction of wave. Vibrate parallel to wave डायरेक्शन. तो बेटा इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके जी. देन कम्स जी, हाउ फार अपार्ट आर द कंप्रेशन? वन वेवलेंथ, राइट जी, लैम्डा अपार्ट है. वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. ये देखें बेटे, इट्स रेयरफेक्शन इज डिस्टेंस अगेन कॉल्ड वेवलेंथ एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली. ये फासला क्या होगा जी? वेवलेंथ. साहब सुन रहे हैं आवाज और एंजॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ upper C is 512 hertz. If speed of sound in air is 340 meter per second, find the wavelength. वही मशहूर है formula we did in the topic of wave. V equal F lambda. What's V? 340. F is 512 into बेटे आपने lambda find करना है. तो 340 ओवर हम करेंगे जी 512.
340 divided by 512. Its answer is 0.6, 0.66 मीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट जी, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। आप जानते हैं बेटे सूरज में बहुत बड़े धमाके होते हैं, वी कांट लिसन इट एट अर्थ। अगर दरमियान में एयर होती तो जमीन पर लाइफ मुमकिन ना होती, उन धमाकों से ही लोग यहाँ फौत हो चुके होते हैं। सो यू लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट्स अ बेल जार। अब क्या किया उन्होंने जी, इन दिस बेल जार, ये बड़े प्रेस कर दिया उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेल, ओके जी। इसको अटैच कर दिया उन्होंने बैटरी के साथ। चलिए यहाँ आप एक बना लें स्विच, यू मेक अ स्विच ओवर हेयर, इट इज स्विच। स्विच ऑफ है, आवाज बाहर नहीं आ रही। व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट, बेल स्टार्ट वाइब्रेशन, बेल बेटे वाइब्रेट करेगी, रिंग करेगी, और जो बाहर साहब कान लगाए खड़े हुए हैं उनको आवाज आना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट लिसनिंग साउंड, ओके जी, उनको आवाज आना शुरू हो जाएगी। आप क्या किया आपने, दिस वैक्यूम पंप, यू स्टार्ट एयर इजेक्टिंग आउट ऑफ इट, आप एयर यहां से बाहर निकालते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, साउंड बिकम डिम, साउंड बिकम डिम, आवाज बहुत डिम हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा जी, नो एयर, नो साउंड आउटसाइड। अगर बेटे अंदर वैक्यूम है, बेल वाइब्रेट कर रही है, आपको नजर आ रहा है बेल वाइब्रेट कर रही है, बाहर आवाज नहीं आ रही। आप क्या किया आपने जी, वी री इंजेक्ट द एयर, वी री इंजेक्ट एयर इन बेल जार, वी अगेन स्टार्ट लिसनिंग साउंड, हमें आवाज दोबारा आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बड़ी कहानी आप लोगों को बयान कर देनी है। देन वी हैव द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात है, अच्छा जब भी आ गया ना एक्सपेरिमेंट, वहाँ डायग्राम बेटे बहुत अहम कौन करते हैं, बिकॉज डायग्राम विल कवर अप द बैड एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग। तो अब आप देखेंगे आपने एक्सपेरिमेंट की सेटिंग की जी, कि यू प्लेस्ड बैरियर, राइट, फिर क्या प्लेस किया आपने जी, वन पाइप, एंड देन यू प्लेस, एंड एक पाइप प्लेस कर दिया आपने, ये एक दूसरा पाइप आ गया बेटे, ये वॉल समझ लें। अब आपने दरमियान में एक और लगा दिया साउंड बैरियर, ये इसलिए लगाया गया बैरियर ताकि आवाज डायरेक्ट कान तक ना पहुंच जाए, आवाज सीधी यहाँ पहुंच नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना, आगे बैरियर आ गया। नो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हेयर आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी बेटा अगर एंगल आई और एंगल आर अगर बराबर है ना, इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देन वी लिसन अ लाउड साउंड हेयर, ठीक है जी। इफ एंगल आई इज इक्वल टू आर, देन लाउड साउंड इज हर्ड। तो इस तरह साउंड सुनाई देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको ऐसे इको भी बोलते हैं, ठीक है जी। मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय अ डायरेक्ट मेथड, ये देखें बेटे, लुक एट द अरेंजमेंट ओवर हेयर, क्या किया साहब ने जी, दे प्लेस अ पिस्टल एंड अ पर्सन हैविंग स्टॉप वॉच, दो अलग अलग पर्सन है। जो ही इसने पिस्टल फायर किया, धुआं बाहर निकला, स्मोक। एज सुन एज द पर्सन सी द स्मोक, उसने बेल को ऑन कर दिया, उसने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच को उसने ऑन कर दिया। एंड व्हेन ही लिसन साउंड, उसने उसको ऑफ कर दिया, व्हेन लिसन साउंड स्विच ऑफ स्टॉप वॉच। उसने बेटे टाइम टी मेजर कर लिया। अब ये डिस्टेंस डी का पता उसको, तो यूजिंग फॉर्मूला वी इक्वल डी ओवर टी, आप फाइंड कर लेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ये डायरेक्ट मेथड है, राइट। इसके अलावा ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, कि हमारे पास ये
बुलेट है। ये साहब जो फायर कर रहे हैं बुलेट, वही सुन रहे हैं उसकी आवाज को। अब आवाज जाएगी, जाते हुए इसने कवर किया डिस्टेंस डी, टकरा के वापस आएगी, इट अगेन कवर डिस्टेंस डी। तो भाई टोटल क्या होगा डिस्टेंस? 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। तो v इक्वल 2d ओवर टी। इन दिस वे ही फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। ये इसलिए बेहतर है कि जो एयर की डायरेक्शन है उसको इसने कर दिया न्यूट्रल, कि साउंड ने ऐसे ट्रेवल किया है। तो अगर फर्ज कर लें एयर ऐसे चल रही है, तो या तो स्पोर्टिव होगी ना, लेकिन जब साउंड वापस आएगी तो वहां उसके अपोज करेगी एयर। तो इसने इस एरर को भी मैनेज कर लिया। ओके जी। तो ये बड़ी खानी बात कर ली हम लोगों ने, 2d इक्वल टू वी इंटू टी। अब ये अपने स्पीड ऑफ साउंड याद रखनी है। एयर में होता है स्पीड ऑफ साउंड 300 से 340 तक, 330 आपको नॉर्मली गिवन होगी। इन वाटर इट इज 1500, इन आयरन इट इज 5000, इन ग्रेफाइट इट्स मैक्सिमम 5400 मीटर पर सेकंड, राइट। इको, साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहाड़ों में आप जाते हैं हिल एरिया में तो वहां आपको आवाज सुनाई देती है, इको। इट्स कॉल्ड साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। An echo is formed when a sound is reflected off hard, flat surface or a large wall a distance apart. Use of echo to find the depth of sea. इसने बेटे क्या किया कि डेप्थ ऑफ सी फाइंड करने के लिए साउंड को भेजा गया समंदर में, टकरा के वापस आई, राइट। तो अब जो डिवाइस है यहाँ पे टाइमर होता है, उसने टाइम नोट कर लिया टी, राइट। और आपको पता है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ, आपने टाइम क्या फाइंड करा जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टी मिल गया आपको। अब साउंड ने कवर किया डिस्टेंस 2d, वन एंड कम बैक। सो यूजिंग फॉर्मूला 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, और d इक्वल v इंटू टी ओवर टू। यू नो, इन सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी लेवल। तो ये बेटे उन्होंने यही तरीका बताया हमें, वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ सी लेवल। A fishing vessel is using sonar to monitor the position of shoals of fish। इस तरह से इसको भी आप चेक कर लेते हैं और मछलियां पकड़ने में आपको इसकी आसानी हो जाती है कि मछलियां नीचे मौजूद है कि नहीं है। फॉर मिलिट्री पर्पस, इको साउंडिंग इज यूज टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ माइंस। कहाँ छुपी हुई हैं या सबमरीन को आप डिटेक्ट करते हैं इसके थ्रू, ठीक है जी। Among animals, bats are known to use echo to detect the presence of obstacles ड्यूरिंग फ्लाइट। तो अल्लाह पाक ने उसमें एबिलिटी दी है, इंसानों में ये एबिलिटी नहीं है। किसको सुनने की? अल्ट्रासाउंड को सुनने की। दे एमिट अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और अल्ट्रासाउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, द इको हर्ड बाय द बैट्स विच देन पिन पॉइंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्स्टैकल। आप देखें इनके अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है, अल्लाह पाक ने लगाया हुआ है, वो कितना एक्यूरेट कंप्यूटर है, उनको फौरी होता है आइडिया कि कितनी दूर आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑडिबल साउंड, साउंड विच वी कैन लिसन, जो हमारी रेंज है वो क्या बेटे? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसे 20 किलो भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो वी कैन लिसन ओनली दी साउंड्स। जो आवाज इससे डिम है या ज्यादा है वो हमें सुनाई नहीं देगी, जो कम है उसे बोलते हैं बेटे इंफ्रासाउंड, और जो आवाज 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और कई ऐसे एनिमल हैं जो इनको यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, इंफ्रासाउंड। एलिफेंट्स बातें करते हैं आपस में किसके थ्रू जी? थ्रू इंफ्रासाउंड। बैट्स यूज करती है अल्ट्रासाउंड, ओके जी। लगभग उसमें एबिलिटी दी हुई है, कंप्यूटर लगे हैं उसके अंदर। अल्ट्रासाउंड विद फ्रीक्वेंसी अबव द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन रेंज ऑडिबिलिटी इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड विजल होती है, अल्ट्रासाउंड विजल टू जो डॉग्स हैं उनके जो ट्रेनर होते हैं दे हैव द विजल। अल्ट्रासाउंड यूज इन द क्वालिटी कंट्रोल यूज होती है जी। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कंक्रीट like high strength concrete, fiber concrete. Manufacturer of the such concrete use ultrasound wave to check the cracks or cavities in
कंक्रीट स्लैब्स फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। हार्ट की होती है इकोकार्डियोग्राफी विद अल्ट्रासाउंड। ओके जी। लिवर का जो शेप है वो चेक कर लेते हैं कि लिवर में ग्रोथ तो नहीं हुई खुदा ना खास्ता। और कॉमनली यूज्ड टू डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस, ये चेक करते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड। ठीक है जी, पहली इंसान की इमेज थ्रू अल्ट्रासाउंड आती है हमारे पास। पिच एंड लाउडनेस। पिच वेट होता है हमारे पास के, जो आवाज शरीर होती है ना, बारीक होती है, उसे बोलते हैं हाई पिच साउंड। पिच कॉज द डिफरेंस इन shriek and grave sound. It depends on frequency of the sound. Higher the frequency, higher is the pitch of sound. देखें बेटे, जो ये साउंड है ये हाई पिच है ना जी। हाई पिच क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ वेव्स। ओके जी, इट्स हाई पिच साउंड आ गया हमारे पास। और ये लो पिच है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। लाउडनेस, ये डिपेंड करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। आप देखें हमारे पास दो साउंड्स हैं, इसका क्या है, एम्पलीट्यूड लेस है ना जी। ये फेंट साउंड है, इट इज फेंट साउंड क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है। और ये लाउडर साउंड है, इसका ज्यादा एम्पलीट्यूड है। इसके अलावा लाउडनेस डिपेंड करती है दो और डिस्टेंस पे, नंबर दो चीजों पे। नंबर एक, एरिया ऑफ वाइब्रेशन। बड़ा ढोल है वो आवाज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लाउडर, ठीक है जी। छोटी ढोल की आवाज कम पैदा करेगी, उसका कम होगा एम्पलीट्यूड। नंबर टू, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। अगर आप स्पीकर के पास खड़े हैं, स्पीकर के पास हैं या नियर द डोर, तो मत आ जाएगी बेटे। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। Next is quality or timbre. Sound produced from different instruments have different impacts on ear. अब देखें, ये आवाज, ये वेव शेप और है, ये वेव शेप और है, और ये वेव शेप और है। ये डिपेंड करती है कि किस इंस्ट्रूमेंट से आवाज पैदा की गई है। इट्स कॉल्ड बेटे क्वालिटी और टिम्बर। वी सी हियर फ्यू प्रॉब्लम्स जी। कहते हैं बेटे आपसे, लाउड स्पीकर intruder alarm is adjusted to give a quieter sound without affecting the pitch. पिच चेंज नहीं होनी, अगर पिच चेंज नहीं होनी फिर फ्रीक्वेंसी सेम रही है, राइट जी। साउंड की क्या क्वाइटर है तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, लो होगा, तो बी इज द राइट आंसर। इन विच सिचुएशन डू साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम फ्रॉम सैटेलाइट इन स्पेस टू अर्थ। ओके जी। टू साउंड वेव्स एक्स एंड वाई आर कंपेयर्ड, एक्स हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, उसकी होगी हाई पिच, ठीक है जी, हाई पिच। और वाई हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड, वो होगी लाउडर साउंड। अब फैसला कर रहे हैं बेटे, एक्स हाई पिच है और वाई लाउडर एंड लो पिच, तो जी ए इसका आगे आंसर, ठीक है। सॉरी, वाई हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड, वाई इज लाउडर, एंड हाई पिच लो पिच है। हाई पिच एक्स की है, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर बी है बेटे, लाउडर एंड लो पिच। नेक्स्ट जी, वी हैव दीज टू साउंड्स, किसका फर्क है जी, क्वालिटी का फर्क है। जस्ट वेल लुक एट द क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। Look at the question जी, an echo sounder produce ultrasound of frequency 2400,000 hertz. Ultrasound travel at speed of 1.5 meter per second. What is the wavelength? Beta V is equal to F lambda, lambda equal to V over F. What is V? 15 किलोमीटर पर सेकंड है, ये ध्यान करना है बेटे यूनिट पे। तो 1500 बन जाएगा हमारे पास। और अब कर देंगे 24K है तो 24,000। तो भैया इसका बना हर आंसर 1500 डिवाइडेड बाय 24,000, इट्स इक्वल टू 0.0625। तो बेटे इसका आंसर ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी।